السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ناول ہے اس کا نام ہے نقش ملال اور اس کی رائٹر ہیں وائبہ فاطمہ۔ وہ اپنے نرم گرم بیڈ پر اوندے منہ بہت سکون سے اور بہت گہرے نیند سو رہی تھی جب سلمیٰ بیگم عجلت بھرے انداز میں اس کے کمرے میں آئی اور اسے یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سوتے دیکھ کر اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ دانت کچکچا کر بیڈ تک آئی تھیں اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور جلدی سے الماری سے مصروف سے انداز میں اس کی چیزیں باہر نکالنے لگیں۔ ارے نالائق، سست اور کام چور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ حریم، کسی چیز کی حد ہوتی ہے۔ آج بھائی کی بارات ہے اور تم یوں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو، معلوم ہے نا؟ اسما کے گھر والوں نے بار بار تاکید کی تھی کہ وقت پر حال میں پہنچنا، اور ابھی تم نے پارلر بھی جانا ہے۔ آخر ہم بارات لے کر کب نکلیں گے؟ وہ اسے آنکھیں ملتے اور منہ کے زاویے بگاڑتے دیکھ کر تلملا کر بے نقص سنائی گئیں تو وہ بری طرح جھنجھلائی۔ مما قسم سے بہت ہی ظالم ہے آپ۔ ایک تو رات مہندی کا فنکشن اتنا لیٹ ہو گیا، اوپر سے پاپا کی فرمائش کہ ان کی پری مہندی ضرور لگوائے۔ رات 4 بجے فجر ادا کر کے سوئی تھی میں۔ اتنی جلدی جگا رہے ہو آپ، اوپر سے بے عزتی بھی کر رہے ہو۔ وہ جمائیاں روکتے اب انگڑائیاں لیتی سلمیٰ بیگم کو اتنی کیوٹ لگی کہ بے اختیار وہی اس سے نگاہیں چرا گئی کہ مبادا ان کی نازک سی اکلوتی گڑیا کو اس کی خود کی نظر نہ لگ جائے۔ اب باتیں مت بگاڑو حریم، اٹھ کر جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہیں پارلر بھیجوں۔ سلمیٰ بیگم نے آج اس کا ڈریس، جیولری اور سینڈل وغیرہ رکھ کر اس کا بیگ تیار کیا۔ مما تھوڑی دیر اور سونے دینا پلیز۔ اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی کہ میرے خوابوں کا شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار میری جانب چلا آ رہا ہے، مجھے اس دنیا سے چرا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ ہائے! وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتی دوہری ہونے کا ناٹک کرنے لگی تو سلمیٰ بیگم نے اپنی رخ الماری کی جانب پھیر کر لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ ایسی ہی تو تھی، شوخ و چیخل چلبلی سی لڑکی جو گھر بھر کو اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے محظوظ کیے رکھتی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے لمبا سا ہنکار بھرا۔ اللہ کرے تمہاری اصل زندگی میں شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آنے کی بجائے ایک جلاد ہٹلر ٹائپ بندہ آیا اور تم جیسی سست، نکمی اور کام چور لڑکی کے تمام بل نکال کر تمہیں تیر کی طرح سیدھا کرے۔ سلمیٰ بیگم نے دانت کچکچا کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بیڈ سے نیچے اتر کر ان کی پشت سے ان کی گردن میں جھول گئی۔ حریم کو سیدھا کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ حریم سے پناہ مانگے۔ چچ چچ، بیچارہ، ترس آتا ہے مجھے اس نادیدہ وجود پر۔ وہ پھر کہکا لگا کر ہنسی اور کچھ یاد آنے پر دانتوں تلے لب دبایا۔ میں پاپا کو جا کر کہتی ہوں کہ مما بول رہی ہیں کہ اصل زندگی میں شہزادہ نہیں آتا، جلاد ہٹلر آتا ہے، مطلب انڈائریکٹلی پاپا کو جلاد اور ہٹلر بول رہی ہیں، ہے نا مما؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سلمیٰ بیگم ان کی بات پر بھونچکا رہ گئیں۔ لپک کر اس کی کمر سینکنے کو الماری سے ہینگر اٹھایا۔ مگر وہ پہلے ہی کہکا لگاتے جائے وہ کنواں سے واش روم فرار ہو چکی تھی۔ وہ جب فریش ہو کر باہر آئی تو سلمیٰ یوسف صاحب سے نہ جانے کس بحث میں مصروف تھی۔ پاپا دیکھیں میری مہندی کا رنگ کتنا اچھا ہے۔ وہ پرجوش سی اپنی ہتھیلیاں اپنے پاپا کے سامنے پھیلا گئی۔ یوسف صاحب نے اپنی لاڈلی گڑیا کو مہربان نگاہوں سے دیکھا۔ بہت اعلیٰ، میری گڑیا کے ہاتھ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، واؤ! انہوں نے اس کی تعریف کی تو وہ ہمیشہ کی طرح بچوں کے جیسے خوش ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا۔ جانتی ہو حریم، بچپن میں جب تم چھوٹی سی تھی، عید تہوار کے موقع پر تمہارے بابا تمہاری ہتھیلی پر مہندی کی ٹکی بنا کر تمہارے ہاتھوں پر شاپر باندھ دیا کرتے تھے تاکہ تمہارا چہرہ، کپڑے اور بستر خراب نہ ہو، اور صبح تمہارے ہاتھوں پر یہ رنگ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے، سب کو دکھاتے کہ یہ دیکھو میری گڑیا کے ہاتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے بتایا تو وہ نم آنکھیں لیے اپنے بابا کے گلے سے جھول گئی۔ مگر اب ہماری بچی کی یہ مہندی بہت جلد ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ اداس کرنے والی ہے۔ وہ نم آنکھیں لیے اداسی سے بولے تو حریم بے چین ہوگی۔ کیوں پاپا، ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ حریم نے اپنے بابا کا مہربان چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ ارے بھائی، جب میری گڑیا کے ہاتھوں پر شادی کی مہندی رچے گی تو ہمیں اداس چھوڑ کر رخصت ہو کر ہم سے دور چلی جائے گی، ہے نا؟ یوسف صاحب نے اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی۔ میں تو اپنے پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، بس بات ختم، ہاں نہیں تو؟ اس نے بے حد کڑوا سا منہ بنایا تو سلمیٰ اور یوسف دونوں ہنس دیے۔ تبھی وہاں عماد چلا آیا اور آتے ہی اس کے بال پکڑ کر کھینچ دیے۔ آج کے دن مجھے تنگ کرنے سے باز مت آنا چڑیل، تم تو چاہتی ہی یہی ہو کہ ہم لیٹ ہوں اور میری بے عزتی ہو، ہے نا؟ عماد نے کہا تو وہ حسب معمول چڑیل کہنے جانے پر چڑ گئی۔ پاپا دیکھیں، اس چمار کو مجھے چڑیل بول رہا ہے۔ وہ جھٹ پٹا کر بولی تو عماد کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں نا، چمار کی بہن چمارن! عماد باز آؤ، ہماری گڑیا کو پریشان مت کرو۔ یوسف صاحب نے اسے گھر کا ارے ایسے ہی خبردار، میرے بیٹے کو عین اس کی شادی کے دن ڈانٹا آپ نے، وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کی اس نکمی سست گڑیا کی وجہ سے لیٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ۔
सलमा बेगम ने बेटे की साइड ली तो वो दांत निकालने लगा। पापा देखें मम्मा को, वो फिर तलमलाई। ओके ओके, सीज फायर, आकर लड़ लेना भाई, अभी वक्त नहीं है। अमाद, बहन को पार्लर छोड़कर तुम भी सैलून चले जाओ, वापसी पर उसे साथ लेते आना। यूसुफ साहब ने कहा। तो ओके पापा, वो शरारत से हंसा। हरीम ने घूरते हुए अपना बैग उठाया। सलमा बेगम और यूसुफ साहब ने मुस्कुराते हुए उन्हें बाहर जाते हुए देखा। सादा मिडिल क्लास घराना था। यूसुफ साहब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। अमाद भी अब इंजीनियरिंग के बाद जॉब पर लग गया था। अमाद की पसंद की शादी हो रही थी। सलमा बेगम सादा सी घरेलू खातून थी और घर भर की लाडली। हरीम बीएससी के 3rd ईयर में थी। यूसुफ साहब का ज़्यादा लंबा चौड़ा ख़ानदान नहीं था, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी हसास थे। वो हॉस्पिटल का सर्द सा रूम था जहाँ पेशेंट बेड पर एक नेम मुर्दा सा वजूद आँखों की साकित पुतलियाँ समेत बिल्कुल साकित और जामिद चित लेटा हुआ था। बेड के बिल्कुल करीब चेयर पर नम लाल अंगार आंखें लिए बैठे इस 28 साला शख्स के चेहरे के तासुरात इतने सख्त और पथरीले थे कि लगता था कि जैसे वो दुनिया जलाकर भस्म कर देने का इरादा रखता है। उसके माथे की रगें तनी हुई थीं और हाथों में उस नेम मुर्दा वजूद का सर हाथ था। वो स्याह डिनर सूट में शानदार सा मर्द इस वक्त अपने अंदर एक तूफान दबाए बैठा था। गुड़िया उठो प्लीज़, देखना तुम्हारे मुजरिम का तुम्हारे सामने इबरत का ऐसा निशान बना दूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने जिंदा रहने पर पछताएगा और मौत के बाद भी। सरदार जायश जहांगीर के नाम से उसकी रूह कांपेगी। जायश ने उसके कान के करीब झुककर आहिस्तगी से कहा तो वो भी कुछ कहता जब उसका खास मुलाजिम रफ़ीक दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ। सरदार जायश जहांगीर अपनी जगह से उठकर, क्या खबर लाए हो रफ़ीक? अगर तू नाकामी की खबर लाए हो तो मैं तुम्हें आज ही जिंदा जला दूंगा। वो अपनी कमर पर हाथ बांधकर धीमे लहजे में गराया था। अच्छी खबर है सरदार जी, उसका पता मिल गया है, पूरे ख़ानदान का अता पता निकलवाया है। एक ही बहन है उसकी, हरीम नाम है बहन का, और उससे भी अच्छी खबर यह है कि आज उसकी बहन की शादी है। पूरा ख़ानदान इकट्ठा होगा। पूरे ख़ानदान के सामने जब वो जलील शख्स जिल्लत उठाएगा तो फिर अनाबिया बीवी को इंसाफ मिलेगा। रफ़ीक ने सर झुका कर खानखार लहजे में कहा तो उसके ग्रे आंखों में हैवानियत सितारी होने लगी। उसकी बहन को उठा लाओ, मेरे हवेली पहुंचने से पहले वो हवेली मिलाकर फेंक दी जाए। समझे, मैं चाहता हूं कि जिस कुर्ब, अजियत और तकलीफ़ से मैं गुजर रहा हूं वो भी वहीं कुछ महसूस करे। उसे भी पता चले कि जब इज़्ज़त रौंदी जाती है तो एक भाई की कैसे रूह कांपती है। सरदार जायश जहांगीर ने सरसराते लहजे में कहा। रफ़ीक अस्बात में सर हिलाकर तेज़ी से बाहर निकल गया। जायश ने इंटरकॉम से डॉक्टर और अनाबिया की केयर टेकर को रूम में आने का कहा। वो पार्लर के बाहर पहुंचे तो अमाद ने उसकी जानिब शरारत भरे अंदाज में देखा। वैसे तो आजकल के मेकअप पर मुझे पूरा भरोसा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू पार्लर में होता है, मगर फिर भी ब्यूटिशियन से कहना अच्छे से इंतजार करो कि मैं चुड़ैल नहीं लगूं। आखिर दूल्हे की बहन हूँ, कुछ तो इंसानों जैसी शक्ल। आउच! वो बात के दौरान हरीम के बाजू पर एक ज़ोरदार किस्म की चुटकी काटे जाने पर बुलबुलाया था। तुमसे तो ज़्यादा अच्छी लगूंगी चमार कहीं के, शक्ल देखो अपनी। मुझे तो डर है अस्मा के ख़ानदान वाले दूल्हा देखकर ये ना कह दें ये दूल्हा वाकई इंसान है, एक सीने डड्डू सीधा किया है। हरीम ने बैग उठाते खिलखिलाकर हंसते अपने पूरा बदला लिया। अमाद उसे घूर कर रह गया तो उसे छोटी सी नाक चिढ़ाने लगा। अमाद ने वही नाक पकड़कर खींच ली। आई जंगली! हरीम की आंखों में बेख्तियार आंसू आए थे कि नाक में मौजूद गोल्ड की छोटी सी नोज पिन बुरी तरह नाक के अंदर चुभ गई थी। वो नाक पकड़कर दोहरी हुई थी। उसके आंसू देखकर अमाद तड़पा। क्या हुआ हरीम? मैं तो मजाक कर रहा था, इधर मुझे दिखाओ। अमाद ने उसका हाथ पीछे हटाना चाहा। मैं ठीक हूँ भैया, उसने आहिस्तगी से कहा। भाई की जान, भाई की छोटी सी गुड़िया, अल्लाह ताला करे तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई आँच तक ना आए, आमीन। भाई तुम पर कभी भी आँच नहीं आने देगा। अमाद ने उसे अपने साथ लगाया और उसके सर पर हाथ रखा। जी जी मुझे मालूम है, ये चौंचले इसलिए हो रहे हैं ताकि मैं पापा को आपकी शिकायत ना लगूं। हरीम संभली और उसकी उदास शक्ल देखकर अपनी टोन में वापस आई तो मुस्करा दिया। तुम लगा देना शिकायत, मैं माइंड नहीं करूँगा। उसने सुलह जो लहजे इख्तियार किया तो वो बैग लेकर गाड़ी से नीचे उतरी। जब तैयार हो गई तो बेल दे देना, अमाद ने कहा तो उसे मुंह चिढ़ाती अंदर भाग गई। अमाद उसकी हरकत पर हंस दिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। वो वेटिंग एरिया में बैठी बेजार हो रही थी कि तभी उठी। सिस्टर मेरे पास वक्त नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी बारात के लिए। जब मेरी अपॉइंटमेंट थी तो आप लोग लेट क्यों कर रहे हैं? हरीम जाकर रिसेप्शनिस्ट के सर पर सवार हुई। अभी अभी वो जवाब देती कि अंदर रूम में से एक लड़की ने बाहर मुंह निकाला। हरीम अंदर आ जाएं, लड़की ने कहा तो उसने सुख का सांस लिया और जल्दी से अंदर दाखिल हुई। अंदर ब्यूटिशियन ने उसका मुस्कुराकर वेलकम किया। आप चेंजिंग रूम से जल्दी से ड्रेस चेंज कर बाहर आ जाएं। ओके, हरीम कहती चेंजिंग रूम में गई और अपना लिबास तब्दील किया। उसने तो अपना लिबास भी पहली मर्तबा देखा था। सारी तैयारी सलमा बेगम ने ही की थी। उसका मिजाज ऐसा था कि वो ज़्यादातर घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी और शॉपिंग पर जाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो फिर ही जाती थी। उसने हैरत से अपने आप को आईने में देखा। मुनासिब
सा नाजुक सरापा गोरे रंग पर हल्के का कामदार लेमन कलर लहंगे में वो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। वो लिबास बदल कर बाहर आई तो ब्यूटिशन ने उसे हैरत से देखा। हरीम कंफ्यूज सी होकर अपनी उंगलियां चटखाने लगी। आइए हरीम, ब्यूटिशन ने सर झटक कर कहा तो आकर दीवार गिर आईने के सामने चेयर पर बैठ गई। क्या हुआ आप ऐसे क्यों देख रही थी मुझे? अजीब लग रही हूँ इस ड्रेस में। हरीम ज़्यादा देर खामोश बैठ नहीं सकती थी, तभी अपनी इन कन्फ्यूजन दूर करने का पूछ ही लिया। मैं ये देख रही थी कि ब्राइडल के हिसाब से आपका ड्रेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ब्राइडल मेकअप तो इस ड्रेस पर सूट ही नहीं करेगा। ब्यूटिशियन की बात पर हरीम अपनी जगह से उछली। वाट, आप ये क्या कह रही हैं आप? मेरा ब्राइडल नहीं पार्टी मेकअप है। हरीम ने जल्दी से उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन एक्सक्यूज़ मी मिस, ब्राइडल मेकओवर मेरा होना है। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक नक्शड़ी सी लड़की सुर्ख ब्राइडल ड्रेस में आकर तीखे लहजे में बोली, ओके बैठे हैं आप भी। वो लड़की हरीम के साथ वाली सीट पर बैठ गई। ब्यूटिशियन का हाथ तेज़ी से चलने लगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हरीम बिल्कुल तैयार थी। लेमन कलर लहंगे के ऊपर पार्टी मेकअप और लंबे घने स्याह बाल कमर पर कर्ल के खुले छोड़ गए थे। वो खुद को आईने में देखकर हैरान थी कि ये वही थी। आप ही काफ़ी तेज़ मेकअप है ये, उसने जज्बुत सा होते हुए मुंह बनाकर कहा। अरे भाई, दुल्हन की बहन हो, रोज़ रोज़ भाई की शादी थोड़ी होगी। इट्स ओके, पूरी क़यामत लग रही हो। ब्यूटिशियन ने मुस्कुराकर कहते आंख विंक की। वो भी हंसती। तभी उसने बैग से फ़ोन निकाल कर अमाद को कॉल थी, जो दूसरी बेल पर रिसीव कर ली गई। हाँ, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ हरीम। पीछे ट्रैफिक के शोर में से अमाद ने बुलंद आवाज़ करके उसे बताया। ओके ओके, आराम से आओ, हरीम ने कहा और फ़ोन रख दिया। इधर अमाद ने फ़ोन रखा। एन उसी वक्त गाड़ी हिचकोले खाती अपनी जगह पर जाम हो गई थी। शिट, क्या मुसीबत है। उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इधर वो अब वेटिंग एरिया में बैठी इंतज़ार करके बेजार हो चुकी थी कि तभी एक लड़की अंदर आई। हरीम, उसने पुकारा। जी। वो जल्दी से अपना बैग लेकर खड़ी हुई। आप ही हरीम हो? जी जी, बाहर आपके घर वाले आपको लेने आए हैं। ओके। लड़की की इतला देने पर वो सर हिलाती पार्लर से बाहर निकली। इधर उधर देखा, अमाद की गाड़ी तो कहीं भी नहीं थी। वो अब परेशानी से अंदर वापसी के लिए मुड़ी ही थी कि महज चंद समायतों की देर थी। एक वैन उसके पैरों में चरचराई और उसे दाएं बाएं बाजू से दबोच कर वैन में खींच ले गया। उन लोगों ने हरीम के मुंह से चीख निकलने का मौका ही तक नहीं दिया था जब एक मोटा कपड़ा रखकर उसकी चीख का गला दबा दिया गया। गली में इस वक्त कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। वैन हवा से बातें करती, अपने पीछे धूल उड़ाती देखते ही वहां से ओझल हो गई। हरीम की हर मज़ाहमत दम तोड़ती जा रही थी। वो जाने कौन लोग थे, बेतहाशा जालिम और बेहिस, जो उसे बुरी तरह दबोच कर बैठे थे। उसने खुद को छुड़वाने को हाथ पैर चलाए, मगर उन लोगों ने उसके कमर पर हाथ बांध कर मुँह पर टेप लगा दी। उसे सीट के नीचे फेंक कर ऊपर कपड़ा डाल दिया गया। हरीम के आंसू उसके बालों में जज़ब हो रहे थे। लाख कोशिश करने के बावजूद कोई ऐसा कसूर याद ही नहीं आया जिसकी पैदाश में उसे इतनी भयानक सज़ा मिल रही थी। आधे घंटे का सफ़र बेतहाशा जानलेवा था। पल पल अजियत में डूबा। काश आज वो पार्लर जाने के लिए निकली ही ना हो। आम दिनों की तरह आज भी वो बोल देती कि उसे घर ही तैयार होना है, कहीं नहीं जाना, मगर अब जाने किन के चुंगल में फंस गई थी। खौफ व दहशत के मारे हरीम का दिल बंद होने को था। वो लोग खामोश थे, आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे कि हरीम समझ पाती कि उसे क्यों और किस मकसद से अगवा किया गया। उन लोगों ने दोबारा उसे हाथ भी नहीं लगाया था, ना आपस में कोई गलीज बात की थी। उनके मकरूह अज़ाइम मालूम हो जाते। हरीम दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी की विर्द किए जा रही थी। गाड़ी एक झटके से कहीं रुकी तो उसका दिल उछल कर हलक में आया था। या अल्लाह रहम, या अल्लाह मदद फरमा, लबों से बेख्तियार ही अदा हुए थे। वो बेतहाशा रो दी। रफ़ीक ने गाड़ी से उतर कर गार्ड जो वहाँ से जाने का इशारा किया तो सब वहाँ से चले गए। अब रफ़ीक ने उसे बाजू से घसीट कर गाड़ी से बाहर निकाला और हवेली के अंदर की तरफ बढ़ा। हरीम के ऊपर वो लोग स्याह कपड़े डाले उसे घसीट कर ले जा रहे थे। वो एक शख्स था जो उसे बाजू से घसीट कर कहीं ले जा रहा था। हरीम के टैप लगे मुंह से दबी दबी चीखें बरामद होने लगी। वो बुरी तरह में चलती रही, मगर रफ़ीक रुका नहीं। हवेली के खामोश दहशत ज़दा से लाउंज से उतर कर वो उसे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल के चौथे कमरे तक आया। दरवाज़ा खोल कर इसे अंदर धकेला और ख़ुद दरवाज़ा लॉक करके उन्हीं पैरों से वापसी की तरफ मुड़ गया। हरीम उस सद से कमरे के दबीज़ कारपेट पर गिरी थी। स्याह कपड़ा से रख कर दूर जा गिरा। वो तड़प कर सीधी हुई। कमरा काफ़ी आलीशान था, उसमें मलजगा सा अंधेरा था, मगर वो यहाँ क्यों थी ये सोच कर वो पागल हो गई थी। उसने काफ़ी हाथ पैर चलाए, मगर अपने बाजू से मजबूत रस्सी से उसे आज़ाद ना करवा सकी। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं जो अभी अभी यहाँ आया हूँ, तो क्या मेरा फरिश्ता आया था उसे लेने? कहाँ है मेरी बहन? बताएं मुझे, नहीं तो मैं पूरे पार्लर को आग लगा दूंगा। अमाद पूरे पार्लर में उसे देख चुका था। अब उसका दिमाग घूम चुका था। तभी भूखे शेर की मानंद कराया था। पार्लर वाली भी बेतहाशा परेशान हो चुकी थी। यकीन करें मिस्टर अमाद, हमारे पार्लर का एक नाम है, एक मकाम है। हम अपने कस्टमर की जानो माल की हिफाजत खुद से भी बढ़कर करते हैं। बाहर यही कहा गया था कि हरीम को बुला दें, उसके घर वाले लेने आए हैं। पार्लर वाली ने तहम्मुल से उसे समझाने की कोशिश की थी।
अमाद अब परेशानी के आलम में बाहर निकला था। पापा को भी फ़ोन पर तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो बला ही बाला उसे आसपास हर जगह ढूंढते फिरे, कोई सुराग भी तो नहीं मिल रहा था कि वो कौन लोग थे जो उसे लेकर गए। यूसुफ साहब और अमाद ने बहुत ढूंढा मगर कहीं ना मिली। सलमा बेगम ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया, मगर उनमें तो इतनी इंसानियत जिंदा थी कि वो अपनी बच्ची की परेशानी की वजह से किसी दूसरे बच्ची को दुल्हन बनाकर यूं ही बैठा रहने को नहीं छोड़ सकते थे। उन सब में इस मासूम का क्या कसूर था? अमाद ने मना करना चाहा मगर यूसुफ साहब ने सख्ती से हुक्म दिया कि वो लोग बारात लेकर लाजमी जाएंगे। तब वो लोग बारात लेकर गए और सादगी से अस्मा को रुखसत करवा कर ले आए। बारात घर वापस आई। पूरे घर पर अजीब सोगवारियत सी फैल गई। यूसुफ साहब तो हाल से ही हरीम को तलाश में फिर से निकल गए थे। अब घर में चंद मेहमान। सलमा बेगम थी। अमाद अस्मा के पहलू में बैठा बेतहाशा बेचैनी से पहलू बदल रहा था कि तभी एक धीमी सी नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आप मेरी फिक्र मत करें, किसी की परवाह मत करें, जाएं चेंज करके हरीम को ढूंढे जाकर। अस्मा ने उसके कान में सहर तारी किया। बहुत शुक्रिया अस्मा, अमाद ने नम आंखों से कहा और फौरन वहाँ से उठा। सलमा बेगम की परेशानी के बावजूद वो चेंज करके दोबारा घर से वापस बाहर निकल गया। सरदार जयश जहांगीर सर्द और सपाट चेहरा लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरा था। सामने ही रफ़ीक हाथ बांधे उसके सामने आया। हम उसकी बहन को उठा कर लाए हैं सरदार जी, रफ़ीक ने कहा तो उसकी आंखें लहू छकाने लगीं। किधर आए? मुख्तसरन पूछा। आपके कमरे में, रफ़ीक ने कहा तो गमे गुस्से से पागल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रफ़ीक उसे मेरे कमरे में रखने की? अभी के अभी निकाल कर हाल में लाओ। वो कहता तन फन करता आगे बढ़ा जबकि रफ़ीक भी उसके पीछे ही लपका था। हरीम इस दबीज़ कालीन पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी जब कमरे के दरवाजे के बाहर भारी भारी बूटों की धमक सुनाई देने लगी तो हरीम का दिल उछल कर हलक में आया। दरवाज़ा खुला। हरीम का दिल किया कहीं छुप जाए मगर वही शख्स इत्मीनान से अंदर आया जिसने उसकी एक झलक गाड़ी में देखी थी। ये वही फ़िरौन था जो उसे उठाकर लाया था। सुनो लड़की, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि सरदार के सामने अपना मुंह बंद रखना। ज़ुबान दराज़ी की तो ज़ुबान काट कर फेंक दी जाएगी। अगर हाँ चालाकी की तो हाथ, आंखें निकाली तो आंखें निकाल दूंगा, समझी? वो कहता हरीम की जाने बढ़ा तो वो रेंग कर पीछे हटने लगी मगर रफ़ीक ने फिर आकर उसे बाजू से दबोचा और अपनी जगह पर खड़ा किया। चुपचाप उसे घसीट कर बाहर ले जाने लगा। एक मरतबा फिर उसको नीचे ले जाकर वो उस हाल नुमा कमरे की जाने बढ़ रहा था। लाउंज में लाकर रफ़ीक ने उसे एक सोफे पर धकेला। वो बुरी तरह रोने लगी। जायश ने बगौर उसे देखा। नॉर्मल कद, बेदाग गोरा वजूद, नाजुक सा सरापा और मछली की तरह झटपटाती वो उसे अजीब लगी। मीठा मीठा सा मेकअप, खुले बाल, कंधे पर सेट किया गया दुपट्टा जो आधा सीने पर आधा पुश्त पर ढलका हुआ था। वो कहीं से दुल्हन तो नहीं लग रही थी। खोल दो उसके हाथ, जायश ने नफरत से कहा तो रफ़ीक ने उसके हाथ खोल दिए। वो आज़ाद किए जाने पर मचल कर पीछे हटी। तुम जाओ, जायश ने सादो सपाट लहजे में कहा। रफ़ीक बाहर चला गया। अब की बार इस भारी गंभीर मर्दाना आवाज़ के ताक़ुब में हरीम ने अपने दाएं जानिब देखा तो खौफ से पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो अजनबी जो कोई भी था, कसरती जिस्म लिए चट्टानों जैसा मजबूत लंबा चौड़ा शख्स उसे इंतहाई नफरत और हकारत से घूर रहा था। हरीम ने झटपटाकर अपने लबों से वो टैप भी खींच ली। कौन हो तुम? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? जवाब दो मुझे, कौन हो तुम? अनजान जगह, अनजान लोग। वो खौफज़दा थी मगर अपने खौफ को खुद पर हावी नहीं होना देना चाहती थी। तभी जितना हो सका अपने कांपते लहजे पर काबू पाकर चिल्लाकर उससे पूछा, तुम्हारी और तुम्हारे दरिंदा सिफत शैतान भाई की बर्बादी हो, मौत हो या तबाही? बड़ा शौक़ है इस इज़्ज़तों से खेलने का। देखते हैं यही खेल अगर उसकी खुद की इज़्ज़त से खेला जाए तो कैसा महसूस करेगा वो। सामने वाले ने सरसराते लहजे में सुकून से कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? क्या किया है मेरे भाई ने ऐसा जो तुम ऐसे बोल रहे हो? हरीम ने तड़क कर कहा तो सरदार जयश जहांगीर ने अपने सामने खड़ी इस दिल भरी की लड़की को देखा जो सामने खड़ी उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थी। मेरी बहन को मोहब्बत का झांसा देकर बर्बाद किया है तुम्हारे भाई ने। उसे मोहब्बत के जाल में फांस कर बर्बाद किया है तुम्हारी घटिया भाई ने। उसकी इज्जत से खेल कर उसे रुसवा किया है तुम्हारे बज़ात भाई ने। और कुछ सुनना है या थोड़ी बहुत गैरत है तुम में भी? ये सब दोहराते सरदार जयश जहांगीर की आंखों से लहू छलकने लगा जिसमें देखकर हरीम को अपने पूरे बदन में चुनटियाँ सी रेंगती महसूस हुई। क्या बकवास है ये? ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम अच्छी तरह छानबीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा भाई ऐसे कर ही नहीं सकता। शट अप यू। जयश के मुंह से गाली निकलने से पहले उसने अपना जबड़ा बुरी तरह भींचा था। छोड़ दो मुझे, मेरे पापा परेशान हो रहे होंगे, मम्मा रो रही होंगी, सब सोच रहे होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। देखो मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन, शट अप। वो धाड़ा था। मैं भी तो उसे यही बताना चाहता हूँ कि किसी की बहन की जगह उसकी खुद की बहन तो हो सकती है, वो भी तो बर्बाद हो सकती है। जैसे मेरी बहन ने रुसवा होकर खुदकुशी करने की कोशिश की और कोमा में चली गई, बिल्कुल वैसे ही उसकी बहन भी तो उधड़ी हुई हालत में वापस आ सकती है ना। उसने इंतहाई सफाकी से उसे सर ता पैर घूरते हुए ये गलीज अल्फाज कहे तो हरीम की रूह तक कांप गई। उन अल्फाज पर वो बिखरे हुए हुलिये में अब सामने फ़िरौन बनकर टांग पर टांग जमाए बैठे अनजान शख्स को खानखार निगाहों से घूर रही थी। जिसने ये सब किया था वो रोना नहीं चाहती थी मगर आंसू खुद ब खुद पलकों की बाढ़ तोड़कर चेहरे पर लकीरें बना रहे थे। मेकअप ज़दा सभी चेहरे पर काजल फैल चुका था जिसे देख के सामने बैठा शख्स हिज उठा रहा था।
यू बास्टर्ड, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? हरीम जारहाना तेवर लिए उसकी जानिब लिपट की और उससे पहले वो उससे दस्त दराजी करती गुस्से और इश्तियाल से पागल सरदार जैश जहांगीर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। फिजा में उठा, उसका नाजुक हाथ कलाई से मरोड़ कर उसकी कमर से लगा दी। आई हरीम की मुंह से एक दर्दनाक चीख बरामद हुई। लगता है डार्लिंग तुम्हें अपनी बॉडी पार्ट्स कुछ ज्यादा ही प्यारे नहीं, तभी ऐसी जुर्रत का मुजाहरा कर रही हो जिसकी पैदाइश में मैं उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दूं। और जानने की इतनी भी क्या जल्दी है? आज रात को मैं तुम्हें बहुत अच्छा मौका दूंगा ना खुद को जानने का, जब तुम अपने भाई के किए एक घिनौने फेल का क्या भुगत कर पल पल की जिल्लत उठाओगी। वो उसके कान में भूखे शेर की मानद कराया, उससे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भेड़िए से अपने कलाई छुड़ाई थी। उसके सामने वो डट गई थी। सामने खड़े शख्स की गरे शैतानी आंखों में घूरा जो उस पर उठ रही थी, तो उसे अपने ही वजूद से घिन महसूस हो रही थी। और जो मैं कब से बकवास कर रही हूँ कि मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तो अकल के साथ तुम्हारी कुव्वत समात भी घास चरने गई है, जो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। छोड़ दो मुझे। हरीम ने उसका गिरबान छोड़ा था, तब उसने पहली मर्तबा घुमाकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो ऊंधे मुंह उस सर्द महल की दबी सब्ज कारपेट पर गिरी थी। अपनी औकात में रहो लड़की, सरदार जैश जहांगीर के गिरबान तक पहुंचने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। ये तुम्हारे भाई की हिम्मत थी कि वो उसकी इज्जत से खेले, और दूसरी तुम्हारी जो मेरे गिरबान तक आ गई। अब देखना तुम्हारे खानदान का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। वो उसे बाजू से घसीट कर चलने लगा, रुख अपने बेडरूम की जानिब किया और हरीम ने बेसाख्ता ज़ेरे लब अपनी मौत की दुआ मांगी। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, भाई ने कुछ नहीं किया। वो फर्श पर उसके साथ घिसती बुरी तरह रोने लगी। वो जबरदस्ती फिर से उसे लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा था। सुनसान हवेली में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। जैश ने उसे लाकर अपने बेडरूम के फर्श पर पटका। वो बुरी तरह रोने और झटपटाने लगी। अपनी पूरी हिम्मत मुझे जमा करके दरवाजे की जानिब भागी, मगर उससे फिर से उसे बाजू से दबोच कर बेड पर फेंक दिया। जब खुद पर आए तो क्या बच निकलना इतना ही आसान होता है? वो अपना कोट उतार कर एक जानिब उछालता बेड की जानिब बढ़ा। हरीम के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेड पर अब पीछे की जानिब रेंगती बहुत बुरी तरह रो रही थी। जब उसे मुसलसल बेड की जानिब बढ़ते देखकर उसका दिल उछल कर हलक में आया। उस जिंदान से बच निकलने का कोई रास्ता भी तो ना था। कोई है? बचाओ मुझे, सेव मी, खुदा के लिए बचाओ मुझे। वो हल्के बिल चलाई तो जायज़ के चेहरे पर तमस्कराना सी मुस्कुराहट लेने लगी। मुझे तुम्हारी ये चीखें, ये बेबसी, ये सिसकियाँ काफ़ी सुकून दे रही हैं डार्लिंग, मगर अफसोस मेरे पास वक्त नहीं है जो ज़्यादा एंजॉय कर सकूं। वो बेड की जानिब बढ़ा। हरीम तेज़ी से बेड की दूसरी जानिब उतरी। वो एक मरतबा फिर दरवाजे की जानिब लिपकी, तेज़ी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। ये दरवाज़ा अब तुम्हारी बर्बादी के बाद और मेरी मर्ज़ी से ही खुलेगा डार्लिंग, उसने सुकून से कहा और उसे बाजू से दबोच कर पास पड़े सोफे पर फेंका। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अमाद भाई किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम क्या नाम लिया तुमने? अपने भाई का एक टांग सोफे पर रखे, एक दूसरे से उसका बाजू दबोचे, वो हल्का सा उसके ऊपर झुका, अब लाल अंगार आंखों से उससे पूछ रहा था, अमाद यूसुफ नाम है मेरे भाई का, इसलिए तो बोल रही हूँ कि ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी। हा 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 हा। हरीम की बात बीच में ही रह गई जब उसका हकारा तमस्कराना कहका कमरे में गूंजा। दाद देनी पड़ेगी, इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी मकार लड़की छुपी है। खुद को बचाने के लिए मकारी भरा गेम खेल रही हो मेरे साथ। इतनी शातिर को अपने भाई का नाम भी गलत बता रही हो मुझे। वो गुस्से से पागल होकर कहते उसे बाजू से घसीट कर बेड पर फेंक कर उसके ऊपर झुका था। उसने हरीम को दबोच रखा था। वो बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। बहुत अचानक इन चीखों में कुछ और जानी पहचानी चीखें भी उसे सुनाई देने लगी। जैश के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। एक वहशत सी थी जो दिलो दिमाग पर तारी हो गई। बदले की आग में सीने में एक जवार भाटा सुलगा दिया तो जैश ने पूरी ताकत से उसका गला दबोचा। वो सुर्ख चेहरा लिए बुरी तरह खांसने लगी और हाथ पैर चलाने लगी। हरीम ने उसका गर्दन दबोच लिया। ये तो सरदार जैश जहांगीर जानता था कि उसका ऐसा कोई गलीज इरादा सिरे से नहीं था। वो ऐसा कोई इरादा रखता भी नहीं था कि बदले और इंतकाम की आग में इस कतर पस्तियों में गिर जाए कि एक लड़की की पाकीज़गी को रोंद डाले। हरगिज़ नहीं। वो बस उसे खौफज़दा करना चाहता था, बहुत ज़्यादा खौफज़दा, ताकि वो आगे जाकर उसकी हर बात माने। मगर उसकी दिलखराश चीखें सुनकर जैश को लगा कायनात की हर चीज़ ज़रा ज़रा उस पर लानत भेज रहा है। फ़ौरन से पहले घिन खाते या इंतहाई कराहियत महसूस करते उसने उसे बेड पर फेंका। एक लम्हे भी ज़ाय किए बगैर वो उस कमरे से निकल गया। फ़ौरन से पहले अनाबिया के कमरे में गया। कमरे की बालकोनी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल आया और गहरे गहरे सांस भरकर अपने अंदर की उस जलन और घुटन को कम करने की कोशिश करने लगा जिसने सीने में एक जवार भाटा सा सुलगा दिया था। ये उसकी सरशित थी ही नहीं, ये उनकी फितरत नहीं थी, ये उनकी तरबियत भी नहीं थी। माजी जैश का एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा घराना था। वो अनाबिया अपने वालिदैन के लाडले चश्मो चराग थे। सरदार आलम जहांगीर का घराना काफ़ी मजहबी और नफीस था। वो ख़ानदानी ज़मींदार थे। जैश ने अपनी तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। आला तालीम के बावजूद उसने अपने बाबा की ख्वाहिश पर ज़मींदारी में ही दिलचस्पी ली।
سردار عالم جہانگیر نے دوران تعلیم جہیز کی منگنی اپنی بھتیجے سے کی۔ پہلے تو یہ رشتہ پوری طرح رینج تھا، مگر پھر اس رشتے کی نزاکت کی وجہ سے جہیز کی فضا میں دلچسپی بڑھنے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ دلچسپی پسندیدگی میں بدل گئی۔ وہ ایم اے ایگریکلچر کی لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے جب ایک ناگہانی کار ایکسیڈنٹ میں عالم صاحب اور مسز عالم اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ جہیز نے بڑی مشکل سے خود کو اور انابیہ کو سنبھالا تھا۔ انابیہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی، وہ بھی 8th میں تھی، تبھی اس نے انابیہ کو ماں باپ دونوں کا ہی پیار دیا۔ کسی بھی حادثے کو بھلانے کے لیے وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ تقریباً 2 سال بعد جہیز نے انابیہ کو ضد پر چچا کو شادی کا پیغام بھیجا، مگر دوسرا دھچکا جہیز کو تب لگا جب عین شادی والے دن فضا نے جہیز کے ساتھ شادی سے انکار کرتے ہوئے اپنے کورٹ میں کیے نکاح کے پیپر سب کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، مگر اس ٹوٹنے کے بعد جب اس نے خود کو جوڑا تھا تو پتھر کا ہی بنا تھا تاکہ پھر سے اسے کوئی توڑ نہ پائے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ انابیہ نے MSc مکمل کر لیا۔ اس کے بعد اپنی دلچسپی کے مطابق پرائیویٹ اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کرنے لگی۔ جہیز نے جب اس سے شادی کی بات کی تب اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ابھی انجینئر 2 میں نہیں پڑھنا چاہتی، وہ ایک پڑھی لکھی باشعور اعتماد لڑکی ہے۔ جہیز کو اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے کبھی ایسا موقع ہی نہ دیا کہ جہیز کو اس سے کوئی شکایت ہوتی، مگر وہ کسی کی مکروہ شاطرانہ سازش کا شکار ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کیسے، مگر ایک دن جب حویلی سے ڈرائیور اسے لینے گیا تو وہ اسکول موجود نہیں تھی۔ سب بچے اور سٹاف جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے جہیز کو اطلاع دی۔ انابیہ نے جہیز کو آخری فون کال کی تھی جس میں وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور یہ کہا کہ اس کی کولیگ فضا نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس دھوکے میں اسے برباد کیا ہے۔ یہ چند الفاظ وہ بول سکی اور فون کٹ گیا۔ تب جہیز اس سے پہلے انابیہ کی تلاش میں نکلتا۔ اس کو فون پر اطلاع ملی کہ انابیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ بھاگم ہاسپٹل پہنچا تھا۔ حادثے پر موجود لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکی جان بوجھ کر بہت اچانک ٹرک کے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد اس کی میڈیکل کے بعد بھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ برباد ہو چکی ہے۔ جہیز کی دنیا اندھیری ہو چکی تھی۔ انابیہ موت کے منہ تک گئی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی۔ جب جہیز کو انابیہ کی جانب سے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے اس کے مجرم کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تب تک منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ جہیز نے اس پر کیس نہیں کیا کیونکہ نہ کوئی گواہ نہ ثبوت، وہ آسانی سے بچ نکلتا۔ اسکول ریکارڈ میں اس کے گھر کا پتہ چلا، یہ بھی اس کی ایک بہن ہے۔ وہ اس سے ایسا انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس درندے کی روح کانپ جائے۔ تبھی وہ اس کی بہن کو اٹھوا چکا تھا۔ وہ اب دشمن کی تڑپ کا تماشا دیکھنے کا وقت تھا۔ اس کا ضمیر اسے یوں ملامت کرنے لگا، مگر اس نے سوچ لیا تھا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کی بہن سے نکاح کر کے اسے 1-2 دن اپنے پاس رکھ کر طلاق دے کر واپس بھیج دے گا، یہی اس کا مقصد تھا۔ اب وہ اپنے ارادے پر ڈٹ گیا تھا۔ تبھی بالو میں ہاتھ پھیرتا نیچے لاؤنج میں آیا رفیق۔ اس کی گرجدار آواز پر رفیق کسی کونے خدرے سے نکل کر تیزی سے سامنے آیا۔ جی سردار جی، جو حکم دیا تھا وہ بندوبست کرو فوراً، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جو حکم سرکار، رفیق کہتا باہر نکل گیا۔ جہیز لاؤنج کے صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنی جلتی کن پٹیاں سہلانے لگا۔ شام سے رات ہونے کو تھی۔ حریم کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ یوسف صاحب جھکے کندھے لیے یوں ہی ناکام واپس لوٹ آئے۔ عماد بھی ناکام واپس لوٹا تھا۔ سلمہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ کوئی چھوٹا سا کلیو بھی نہیں ملا تھا کہ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ یوسف صاحب اب کیا ہوگا، میری بچی جانے کس حال میں ہوگی، کیا ہوگا اس کے ساتھ، وہ تو گھر سے بھی نکلتے ہوئے ڈرتی تھی، اب جانے کہاں ہوگی، یہ رات کیسے گزرے گی میری بچی گھر سے باہر۔ سلمہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر روتی تھیں۔ امی پلیز چپ کریں، کچھ نہیں ہوگا، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اس کی حفاظت کی دعائیں مانگنا، دیکھنا آپ کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی۔ عماد نے انہیں سینے سے لگایا۔ امی صبر کریں، حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دعائیں مانگیں، ماں کی دعاؤں میں تو بہت طاقت ہوتی ہے نا، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اسماء نے انہیں تسلی دی۔ اس کے گھر پر اور گھر والوں پر یہ رات بہت بوجھل تھی، بہت خوفناک اور گھناؤنی۔ عجیب عجیب سے وہم اور وسوسے ستا رہے تھے۔ یہ ساری رات دعائیں مانگتے گزری کہ اللہ تعالیٰ اس نازک سی جان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیڈ سے اتر کر اب دبیز کارپیٹ پر سہمی سی بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تھا سہم کر دروازے کی جانب دیکھتی کہ کوئی تو آ نہیں رہا۔ کچھ ہی دیر اس کے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے جب کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ حریم نے بے تحاشا سہم کر دروازے کی جانب دیکھا۔ گہری ہوتی رات اتنی بڑی حویلی میں ان دہشت ناک مردوں کے بیچوں بیچ تنہا خوفزدہ نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، مگر اب تک اس نے اپنی ہمت و حوصلہ قائم رکھا تھا۔ اسے اپنے مما بابا کے پاس صحیح سلامت جانا تھا۔ اسے اپنی ہمت باندھنے رکھنی تھی۔ دروازے سے ایک درمیانے عمر کی عورت جو شکل سے کافی اچھی اور نرم مزاج کی لگ رہی تھی، اب دھیمے قدموں سے چلتا حریم کی جانب بڑھی اور تو سہم کر بے ساختہ پیچھے کی جانب سے رکھنے لگی۔ بی بی جی ڈرو نہیں۔ امتیاز جلدی سے حریم کے پاس آئی جیسے جہیز نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ وہ حریم کے پاس 2 زانوں بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کاش شکلوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت ہو کر آتے۔ امتیاز سوچ کر رہ گئی۔ بی بی یہ چادر اوڑھ لو اور میرے ساتھ باہر چلو، آپ کا نکاح ہے ہمارے سردار جی کے ساتھ۔